Okay, chalo, let's quickly begin. Surface areas and volumes. तो today we are going to focus on formulae. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सारे फॉर्मूले स्टडी करके करेंगे. तो छोटा Sir, सा your क्लास हो. voice is breaking. सॉरी, Your voice is breaking. योर my voice is breaking. Your internet is okay because I am on Wi-Fi and it is very powerful. Can everyone listen to me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so please check your internet. Whoever is hearing my cracked voices. ठीक है, सो आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, सारे शेप्स के, सारे सॉलिड्स के. सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास, नॉट वेरी लॉन्ग. ठीक है, और ये फॉर्मूले सारे तुम्हें लिखने हैं. एटलीस्ट एक फॉर्मूला तुम्हें 5 to 10 टाइम्स लिखना है, तुम्हें उसको मेमोराइज करना है. बिकॉज अगर फॉर्मूले मेमोराइज नहीं होंगे इस चैप्टर में तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन. ठीक है, सो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला बना कैसे है, बट देन उसको एक तो नोट ले लेना है और फिर उसको लर्न करना है. ये तुम्हारा जॉब है, इट इज़ योर टास्क. ठीक है, और मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्ड करते रहना, क्योंकि आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद दिस online thing when nobody is responding. So I feel that I'm talking, it is nobody is you know interested to listen to what I'm saying. So if you don't respond, then it will be a very disappointing thing for me. ठीक है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड इन बिटवीन. ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था. लेंथ के जो मेजरमेंट्स है उसके यूनिट, उसके जो डिफरेंट यूनिट्स है उसके रिलेशंस. यूनिट कन्वर्जन. किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, इससे हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. वैसे एरिया और वॉल्यूम के भी यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड I think I have discussed with you, but I can again show you how to do it. So suppose we have let's say King Henry died, mother didn't cry much. This is kilo. Hecto, deca, meter, deci, centi, milli. And if you're converting from bigger unit to smaller unit, whichever step, how many ever steps you are taking from for converting from bigger to smaller value, those many zeros you will put. So suppose you're converting from kilo to meter. So how many steps you have gone down? 3 steps. So what you will do, you will multiply by 1000. But suppose you are converting from centi to meter. Okay, how many steps you have gone up? 2 steps. So you will divide by 100. So if you are converting from smaller quantity to bigger quantity, you will divide. If you are converting bigger quantity to smaller quantity, you will multiply. And the number of zeros you will add depends on the number of steps you are taking. ठीक है, but at the same time, suppose I'm converting from centimeter to meter. I told you you have to divide by 100. But what if I'm converting from centimeter square to meter square? Here also I will divide, but not by 100. I'll divide it by 100 square. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया कन्वर्जन में, तो ये जो तुम्हारा मल्टीपल है
उसमें भी स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर. सपोज यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब to meter cube. So what you will do, you will divide by 100, but not only 100, you will cube it. So you will divide by 100 cube. ठीक है. So that's the only thing you have to keep it in mind. So unit conversions are very similar to what we have tried earlier also. ठीक है. So let's start with our solid shapes. सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बेसिकली एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हम लोग रेगुलर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हम जिस सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दोज आर नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब, number 3 cylinder, number 4 cone, number 5 sphere, and number 6 hollow sphere. ठीक है. ये 6 टाइप के हमारे पास सॉलिड शेप्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो आज मैं सारे फॉर्मूले तुम्हें बता दूंगा, 6 के 6 शेप्स के सारे फॉर्मूले. ठीक है. तुम्हारा काम क्या होगा, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो तुम्हें ये सारे फॉर्मूला के साथ रेडी रहना. अगर मैंने पूछा किसी को और किसी को फॉर्मूला नहीं आया, तब भी मैं क्लास से निकाल दूंगा उसको. ठीक है. तो ये सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मूले के साथ रेडी करना पड़ेगा. मैं फॉर्मूले आज ही बताऊंगा आपको. और आई हैव नोटिस दैट एंड आई वांट रिस्पॉन्स. ओके, अगर ये बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन आई हैव टू थिंक अबाउट लेटिंग यू इन द क्लास नेक्स्ट टाइम और नॉट. सो मुझे पूछा जाता है कि व्हाट डू वी हैव टू प्रिपेयर टुडे, व्हाट डू वी हैव टू प्रिपेयर टुडे. किसने पूछा था ये मुझे आज और पहले? जानवी. किधर है जानवी? सर यही हूँ. तुमने पूछा था जानवी? यस सर. हाँ, तो इसका आंसर मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि देखो, आज तो न्यू चैप्टर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम. करेक्ट. तो आज इसके पहले तो मैंने कुछ बताया नहीं है इसके बारे में. सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में मैंने कुछ, आई हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग. सो इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक फॉर यू. ठीक है. बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये कोई नया टॉपिक नहीं रहेगा, बिकॉज टुडे आई एम ऑलरेडी गोइंग टू शेयर all the important informations which are involved in this chapter with respect to all these shapes and everything. ठीक है. So next time you don't ask me what you have to be prepared with. You have to be prepared with what I taught in today's class. जनरली मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मेरे क्लास में जब भी आओ, तुम्हें पिछले क्लास में क्या हुआ है, या पिछले क्लास में अगर आज मैथ्स का क्लास है तो पिछला मैथ्स का क्लास जब भी हुआ है तो मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, ये सारा आइडिया तुम्हें होना ही चाहिए. यू डोंट हैव टू आस्क मी एवरी टाइम कि व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर. यू हैव टू बी जनरली प्रिपेयर्ड. क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने बहुत बार पहले भी पूछा है तुमसे, मैं रैंडम क्वेश्चंस करता हूँ जब इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मेरे को आंसर नहीं मिलते हैं. आई डोंट गेट आंसर्स. ऑल्दो ये चैप्टर ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया है, देन हाउ इट गोज आउट ऑफ योर माइंड. तो इसका मतलब क्या है, वो रेगुलर रिविजन घर पे जो होना चाहिए वो नहीं करते हो तुम. सो आई एम गोइंग टू बी आस्किंग एनी क्वेश्चंस रैंडमली फ्रॉम द टॉपिक्स आई हैव टॉट, एंड आई वांट प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड. So don't ask me next time what do you have to prepare. You have to be prepared generally. ठीक है. Not about what. You have to be prepared. You have to have idea what is there in your syllabus, what I have taught you. If you cannot tell me that कि मैंने क्या पढ़ाया है तुमको, मतलब मेरा पूरा वेस्ट कर रहे हो तुम, फेल है फिर. तो इसमें तो मैं खास करके बता रहा हूँ कि आज का जो भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, next time I want you to be prepared with it because we are going to use these formulae. Did I make myself clear? I want a bloody response from Yes, all of sir. you. नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे. Yes, sir.
हाँ, यस सर, आई वांट अ लाउड एंड क्लियर यस सर फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. हाँ, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट यस नहीं सर। है ये ऑनलाइन क्लास लेने का, अगर सब लोग म्यूट यस करके सर। बैठे रहेंगे तो। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक एक करके मत बोलो, साथ में बोलो। चलो लेट्स गो एंड लुक एट क्यूबॉइड। तो तुम्हारे सामने जो यहाँ पे शेप दिख रहा है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, सबने देखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, मैच बॉक्स, वुडन बॉक्स, बुक, डाइस। ये सारे, डाइस तो खैर क्यूब जैसा होता है, बट मैच बॉक्स इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर अ क्यूबॉइड। वुडन बॉक्स सबने देखा है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड किससे बनता है? ये 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से बनता है। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। ठीक है, इससे बनता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, बॉटम वाला फेस और टॉप वाला फेस। ठीक है, इसमें ऑपोजिट फेसेस होते हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये ऑपोजिट फेसेस है। वैसे ही ए ई एच डी और बी एफ जी सी ये ऑपोजिट फेस है। डी सी जी एच और ए बी एफ ई ये ऑपोजिट फेसेस है। और एडजेसेंट फेसेस भी होते हैं, बी सी जी एफ और ए बी एफ ई ये ऑपोजिट सॉरी एडजेसेंट फेस है। एडजेसेंट फेस कैसे पता लगाते पता है? एडजेसेंट फेसेस अगर तुम देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ एडजेसेंट फेसेस के बारे में। सो यू सी दिस फेस, ये वाला फेस, एंड लेट मी चेंज कलर एंड शो यू। और ये वाला फेस, you see these two faces or not? यस सर। Yes, यस sir. सर। गुड। तो ये जो दो फेसेस दिख रहे हैं ना तुम्हें, एक बॉटम वाला है और एक राइट वाला फेस है, उसमें कॉमन लाइन कौन सी है? कॉमन लाइन सेगमेंट BF। BF. BF। बी एफ, एग्जैक्टली। तो ये बी एफ उनमें कॉमन लाइन सेगमेंट है। तो जो भी फेसेस में कॉमन लाइन सेगमेंट होती है इसको बोलते हैं एज। कॉमन लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? एज। कॉमन एज वाले फेसेस एडजेसेंट फेस होते हैं। तो इस हिसाब से ए डी एच ई और डी एच सी, डी एच जी सी ये भी तो एडजेसेंट हुए, क्योंकि इसमें कॉमन एज है डी एच। ठीक है, तो इसको एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। खैर इसके बारे में इतना कोई फॉर्मूला या इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए एडजेसेंट एंड ऑपोजिट फेसेस के बारे में। ठीक है, अच्छा एजेस क्या होती है और कितनी होती है? हर एक क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है। एजेस मतलब ये लाइन जहाँ पे दो फेस मीट करते हैं वो लाइन। 12 एजेस होती है, 12 एजेस। 4 हाइट्स होती है, 4 लेंथ होती है और 4 ब्रेथ होती है। 4 ब्रेथ, 4 हाइट्स एंड 4 लेंथ्स। ठीक है, 12 एजेस टोटली। वर्टाइसेस जहाँ पे दो एजेस मीट करती है, 2 या 3 एजेस, 2 नहीं 3 एजेस जहाँ पे मीट करते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कोई नया नाम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सबको पता है वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं जिस वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ वो ये है जी। यहाँ पे सी जी, जी एच या एच जी और एफ जी ये सब मीट कर रहे हैं, तीनों एजेस, इसलिए पॉइंट एक वर्टेक्स है, वर्टाइसेस। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है हमारे क्यूबॉइड में। एक तो लेंथ है, तो मैं तुम्हें लेंथ बताता हूँ। दिस इज द लेंथ, ए बी जो है ना ये लेंथ है। ब्रेथ है या फिर थिकनेस, ये है ब्रेथ। और हाइट है, ये है हाइट, इसको डेप्थ भी बोलते हैं। ठीक है, सो 3 डायमेंशन है, दैट्स व्हाई क्यूबॉइड एंड ऑल दीज सॉलिड्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये पूरे चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितने भी शेप्स हम पढ़ने वाले, दे आर ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस होंगे, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, 3 डायमेंशनल। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्यूब के ऊपर। क्यूब क्या है?
ये रहा क्यूब। क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है, बट इसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। ऑल द फेसेस आर शेप्ड लाइक अ स्क्वायर। अगर सारे फेसेस स्क्वायर शेप में रहेंगे तो उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे क्यूब। क्यूब, ठीक है। सो दिस इज अ क्यूब। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होते हैं। सो वी कॉल दिस एज एन एज और साइड ऑफ अ क्यूब। लेंथ भी ए है, साइड ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए। आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, ये सब क्यूबिक। रूबिक क्यूब पता होगा सबको, रूबिक्स क्यूब सबको पता होगा। सो दैट्स ऑल्सो अ क्यूब। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है इसमें। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूले फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब क्या है? ये सारी जो सरफेसेस है ना, उनका टोटल एरिया। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये वाला, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। सो क्यूबॉइड में दो फॉर्मूला होता है। क्यूबॉइड, लेट मी राइट हियर। एक तो होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ये तुम लोग नोट कर लोगे और क्यूबॉइड का डायग्राम बनाओगे साइड में। दूसरा एक फॉर्मूला होता है LSA, लैटरल सरफेस एरिया। lateral surface area, ये lateral surface area is nothing but area of 4 walls, area of 4 walls, ठीक है। ये होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी टाइम्स H, 2 ब्रैकेट L प्लस बी टाइम्स H। दिस इज lateral surface area क्यूबॉइड का। फिर एक होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नोट कर लेना प्लीज सब कुछ। ये होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस कंटेन्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। इसके अंदर कितनी जगह है, कितनी एयर है इसके अंदर, स्पेस, बेसिकली वॉल्यूम स्पेस होता है। और एक फॉर्मूला है डायगोनल का, दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एंड यू नो डायगोनल कहां से कहां तक होता है? ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट तक, मतलब ये वाला तुम्हारा डायगोनल। दिस इज द डायगोनल। फ्रंट वर्टेक्स से ऑपोजिट टॉप वर्टेक्स तक, फ्रंट बॉटम वर्टेक्स से ऑपोजिट टॉप वर्टेक्स, वहां तक अगर लाइन ड्रॉ करो तो तुम्हें डायगोनल मिलेगा, और ये डायगोनल का फॉर्मूला है। ठीक है। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूले विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ क्यूबॉइड। अच्छा, अगर क्यूबॉइड हॉलो है, ठीक है, हॉलो ओपन क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड मतलब सिर्फ एक साइड से ओपन है, ठीक है। सो दिस इज अ हॉलो क्यूबॉइड। इसमें और एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम।
ये है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला इन केस ऑफ हॉलो क्यूबॉइड। क्योंकि यहाँ पे अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल कहाँ पे, सिर्फ उसकी थिकनेस में है, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा, आउटर वॉल्यूम विल बी आउटर लेंथ इंटू आउटर ब्रेथ इंटू आउटर हाइट, माइनस इनर वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच, इनर लेंथ इंटू इनर ब्रेथ इंटू इनर हाइट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉलो क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला लिख लो। सो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज फॉर क्यूब। क्यूब तुम्हें पता है कैसा होता है, इट इज लाइक ऑल द फेसेस आर स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक है टोटल सरफेस एरिया इसका विच इज 6a स्क्वायर, प्लीज नोट इट डाउन। एक है इसका लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विच इज 4a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मेक्स सेंस बिकॉज हर एक फेस का एरिया a स्क्वायर है, और ऐसे 6 फेसेस है, सबका एरिया a स्क्वायर ही होगा, सारी साइड्स इक्वल है, तो 6a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स है, चारों का एरिया, हर एक का एरिया a स्क्वायर है, सो 4 इंटू a स्क्वायर। वॉल्यूम है a क्यूब, वॉल्यूम है a क्यूब। ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, मैंने तुम्हें बताया था डायगोनल क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्टाइसेस को, ऑपोजिट फेसेस के ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो यहाँ पे अगर तुम बोलो मुझे, मैं बना देता हूँ। ठीक है, डायगोनल विल बी फ्रॉम दिस एंड टू द बैक एंड, ये डायगोनल। √3 times a, diagonal is √3 times a. Let's confirm this formula. √3 times a is correct. ठीक है, सो ये 4 फॉर्मूले क्यूब के, आई होप सबने नोट किया सबने नोट? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड गुड गुड। सो ये क्यूब और क्यूबॉइड सारे फॉर्मूला आ गए। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और भी तुम फॉर्मूले बना सकते हो, बट इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ना, उसका एक्चुअल नाम जो है दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है ये? ऊपर वाला फेस सर्कुलर होता है और नीचे वाला फेस भी सर्कुलर होता है। तुमने बहुत सारे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट अपने अराउंड देखे ही होंगे। ठीक है, एक ग्लास हो सकता है सिलिंड्रिकल, बट ऊपर और नीचे वाले फेसेस का रेडियस सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए। एक बॉटल हो सकता है सिलिंड्रिकल, तुम्हारा गैस का सिलेंडर को हम सिलेंडर ही बोलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा सिलेंडर के डायमेंशंस देखो क्या क्या होते हैं। सिलेंडर में एक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये होती है उसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट। ये हाइट हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। और ये दूसरा डायमेंशन है विच इज द रेडियस। हाइट एंड रेडियस, सिर्फ 2 डायमेंशन है इंपॉर्टेंट सिलेंडर में, हाइट एंड रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द टॉप, ऑलवेज रिमेंबर इन सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे
एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। LSA को हम CA से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब ये कर्व्ड पार्ट का एरिया, ठीक है। कर्व्ड पार्ट का एरिया इज 2πRH। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, 2πR ब्रैकेट R+H। और एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज πR²H, πR²H। सिलेंडर में भी एक टाइप आता है, दैट इज हॉलो सिलेंडर। ये मुश्किल है, मतलब तुम्हें कि हॉलो सिलेंडर का कोई क्वेश्चन पूछे, बट अगर किसी ने पूछ लिया कभी तो यू शुड बी रेडी विद द आंसर, यू शुड नो द टेक्निक। तो टेक्निक मैं तुम्हें फॉर्मूला बिल्ड करके बनाने की बताता हूँ। फॉर्मूले सारे लर्न करना डिफिकल्ट है, लेकिन टेक्निक तो पता ही होनी चाहिए तुमको। ठीक है। सो इसमें दो रेडियस है, एक तो है इनर रेडियस और दूसरी है आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कैपिटल आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर, और इसकी हाइट क्या है h। तो इसमें डायमेंशन कितने हो गए, 3 डायमेंशन हो गए एक्चुअली, इनर रेडियस, आउटर रेडियस और हाइट। अच्छा, इसमें दो फॉर्मूला है, एक तो मैं तुम्हें दे रहा हूं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम है पाई इंटू कैपिटल R² इंटू एच, इनर वॉल्यूम है पाई इंटू स्मॉल R² इंटू एच। तो पाई एच बाहर आएगा, अंदर बचेगा R² माइनस R²। दिस इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2π कैपिटल RH, बाहर की कर्व्ड सरफेस का एरिया, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2π स्मॉल RH, प्लस एरिया ऑफ द टॉप पार्ट। टॉप पार्ट में क्या दिख रहा है तुम्हें पता है, ये दिस इज अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का एरिया कितना होता है, पाई ब्रैकेट R² माइनस R²। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इज एरिया ऑफ द रिंग, क्योंकि रिंग जैसा पार्ट बचेगा हॉलो सिलेंडर में। और ऐसी कितनी रिंग है, एक तो ऊपर है रिंग और एक नीचे भी तो है रिंग, देखो नीचे भी एक रिंग है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH प्लस 2π R² माइनस R²। outer curved surface area, inner curved surface area and area of the two rings। so ये सिलेंडर के सारे फॉर्मूले हो गए। मतलब सिलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूले से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। डन, लिख लिया सबने? Sir, can you please explain the TSA of hollow cylinder? What you want me to explain? I just explained. Ask me specific question. Ma'am, sir, I just wanted to know that this total surface area of hollow cylinder, how you have taken? I am asking you this question. What is this? Tell me. Sir, this is the total surface area of... No. I have highlighted some part. What is that highlighted part? Sir, this is the curved surface area. This is outer curved surface area. Yes, sir, this is outer curved surface area. What is this? Sir, inner curved surface area. Okay, so we have covered both the curved surfaces. We have to find total surface area. So what is the remaining? Area of top and bottom. So what is this? This is area of the ring. Okay, sir. What is this? Area of the ring. Area of the ring. And how many rings are there? One in the top and one in the bottom. Yes, sir. Right? Yes, sir. Right? Yes, sir. So this is 2, twice. So if you add all of them, you get total surface area of hollow cylinder.
Okay, sir. Is it clear now? Yes, sir. Cool. Okay, let's move to the next shape. ठीक है, सो हमारे पास इतने शेप हो गए रेडी. क्यूबॉइड, hollow cuboid open, and cube, and cylinder, and hollow cylinder. So next shape we are going to do is, कोई बता सकता है नेक्स्ट शेप कौन सा बताया था मैंने? What is this shape? Tell me. Cone. This is a cone, yes. And cone has three notable dimensions. This is the height of the cone. This is the radius of the cone. Radius R, height H, and this side is the slant height. Now height is always perpendicular to the radius. So this slant height will be the hypotenuse. Right? So first let me give you the relationship between slant height and radius. L square is equal to h square plus r square. So L is equal to under root of h square plus r square. स्लांट हाइट ढूंढने का फॉर्मूला है, क्योंकि कभी कभी स्लांट हाइट नहीं दी होती, हाइट और रेडियस दी होती है, और तुम्हें स्लांट हाइट चाहिए, तुम कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला से नोट करो इसको. ठीक है, कभी कभी स्लांट हाइट और रेडियस दिया है, हाइट नहीं दिया है, तो यू कैन फाइंड इट. ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कोन के लिए, इसको याद रखना है. इसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया. किसी का माइक ऑन है? ऑफ करो प्लीज, म्यूट करो अपने आप को. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया. पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एरिया ऑफ बॉटम होगा. बॉटम है पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन निकलेगा, तो एल प्लस आर अंदर बचेगा. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक फॉर्मूला है वॉल्यूम का. वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. कोई मुझे बता सकता है ये पाई आर स्क्वायर एच किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है? सिलेंडर. वेरी गुड, वेरी गुड. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है. कोन में और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इतने ही फॉर्मूला है. और हॉलो कोन जैसा कोई अपने को कभी पूछते नहीं है. ठीक है, समझ में आया तुम्हें? यस सर. Yes, sir. सो कोन भी हो गया. नेक्स्ट शेप क्या था, कोई बता सकता है? Sphere. यस, स्फीयर. स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज अ 3 dimensional सर्कल. ग्लोब होता है ना तुम्हारा, सिमिलर शेप. ग्लोब या फिर फुटबॉल बॉल, एनी सॉर्ट ऑफ बॉल इज स्फेरिकल. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज स्फीयर. अब इसमें फॉर्मूला देखो,
इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये एक ही फॉर्मूला होता है, बिकॉज देर इज नो फ्लैट सरफेस, ओनली कर्व्ड सरफेसेस. सो 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया. और एक फॉर्मूला है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब. ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम. बस ये दो ही फॉर्मूला है इसमें, TSA CSA का एक ही फॉर्मूला और एक वॉल्यूम का है. तो स्फीयर इज अ कंपैरेटिवली सिंपलर 3D ऑब्जेक्ट. 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर. एक हॉलो स्फीयर भी होता है, स्फेरिकल शेल बोलते हैं उसको, स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर. सो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला में, हॉलो स्फीयर में देखो तुम्हें ज्यादा नहीं पूछेंगे, एक ही फॉर्मूला पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो पहले भी जब भी हॉलो ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक पूछते ही है हमेशा. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. तो ये जो हॉलो स्फीयर होता है उसके दो रेडियस होती है, आउटर रेडियस, इनर रेडियस. ठीक है. सो इसका जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ठीक है. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल. अच्छा, दूसरा मैंने और एक ऑब्जेक्ट बताया था दैट इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा होता है देखो. हेमिस्फीयर इज हाफ स्फीयर, जैसे सेमी सर्कल होता है ना, वैसे ही हेमिस्फीयर होता है. सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल, हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, हाफ स्फीयर. इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है दैट इज इट्स रेडियस. इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एक टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है. टोटल सरफेस एरिया इसमें इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी हैव अ कर्व्ड सरफेस एज वेल एज अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस ये टॉप वाली सरफेस है जो एक सर्कल है. तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा दैट इज CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. एक हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. मटेरियल मतलब यही हो गया, वॉल्यूम ही हो गया. इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ द वॉल्यूम ऑफ योर स्फीयर. 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. और इसमें भी हेमिस्फेरिकल शेल होता है, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर. तो हॉलो हेमिस्फीयर कैसा होता है मैं बता देता हूं तुमको. थोड़ा शेप मेरा गंदा आ रहा है यहाँ से, सो ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. ठीक है. इसमें आउटर रेडियस कैपिटल आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर है. ठीक है. इसमें एक तो होगा इनर CSA. इनर CSA कितना होगा इसका? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. एक होगा आउटर CSA दैट इज 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर.
और एक होगा एरिया ऑफ टॉप, ये वाला, बट उसको हम लोग अलग से नहीं बोलते हैं, उसको टीएसए में डाल देते हैं। टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 2πr² प्लस 2π प्लस एरिया ऑफ द रिंग दैट इज π(r² माइनस r², जो ऊपर एक रिंग है ना उसका एरिया, टीएसए। अच्छा, इसके बाद है इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा दैट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दैट इज 2/3πr³ माइनस r³ volume of material, and that's it. You are done with all the formulae of the chapter, full chapter. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फुल चैप्टर के सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।